So, good evening, brothers and sisters. तो इस संध्या समय में आप सबका स्वागत है भाइयों और बहनों। So, last time we did Romans chapter 14, पिछले बार हम लोगों ने रोमियो के 14वें अध्याय में से पढ़ा था, where it was basically about accepting one another and giving freedom to one another. और वहाँ पर खास करके बताया गया था कि एक दूसरे को हमें ग्रहण कैसे करना है और एक दूसरे को हमें आज़ादी कैसे देनी है। So, particularly the Word of God speaks about two things. One was about eating and about the days, observing days. और यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन है वह हमें दो बातों के विषय में खास करके बताता है। एक बात है कि खाने पीने के विषय में और दूसरा है कि खास दिनों को मनाने के विषय में। Yeah, so about eating vegetables and eating meat, and about also about drinking wine, and then about observing some special days. तो वहाँ पर मांस मच्छी खाने के विषय में या फिर सब्जियां खाने के विषय में और दाखरस पीने के विषय में था, और दूसरा था कि अलग अलग दिन जो हम मनाते हैं उस विषय में। Normally, we don't have much of this problem in our midst about eating vegetables or eating meat and drinking wine and observing days. That is not much there in our midst, much of a problem. तो खास करके हमारे साधारण तौर पर हमारे बीच में यह समस्या जो है जिसमें सब्जियां खाना है या फिर हमें मांस मच्छी खाना है, ऐसे तरीके की समस्या हमारे बीच में ज्यादातर नहीं होती है। But if it is there, we must definitely follow what the guidelines of the what Romans 14 says. परंतु अगर ये है तो हमें जो भी रोमियो के 14वें अध्याय में बताया गया है उसका पालन करना चाहिए। But last time I mentioned about some other things like cinema and dance and makeup and other things. और पिछले सप्ताह में मैंने कुछ और भी बातों के विषय में बताया था, जैसे कि सिनेमा जाना, डांस करना और मेकअप लगाना। So here also we can tend to judge one another. So I mentioned those things. और यह भी ऐसे कुछ जगह है जहां पर हम एक दूसरे को का न्याय कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। Now that is not mentioned in the Romans 14 anyway. और ये सब बातें रोमियो के 14वें अध्याय में लिखी नहीं है। It is just the same principle to be used. और ये तो सिर्फ एक जो स्तर है जिसका हमें पालन करना चाहिए। Basically the same principle we have to use. और यही सिद्धांत हमें हमेशा ज्यादातर इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, but in saying that, I want to clarify that seeing cinema and what I said, dance and makeup and all that, that I told it so that we know what is right. I mean, I personally do not see cinema. Okay, I have got no interest because I was a movie addict, and even about dance, we know what we are talking about. So I want to say that what I'm talking about is that which is honorable to God. तो सिनेमा देखना, डांस करना, इन सभी विषयों में मैंने बताया था, परंतु मैं खुद भी सिनेमा नहीं देखता क्योंकि मुझे सिनेमा देखना पसंद नहीं है। और हमें अपने अपने हृदयों में यह जांचना चाहिए कि परमेश्वर को क्या भाता है। Yeah, so once you understand that clearly, that is very important. Otherwise, it's not a. I'm not saying it so that we can start seeing it, but we have to do let all that we do should glorify the Lord. That is what I want to do. मैंने जो बताया उसका मतलब यह नहीं कि हम लोग सिनेमा देखना शुरू कर दें, परंतु इसका मतलब यह है कि हम लोग इस बात की अहमियत को समझें कि क्या परमेश्वर को भाता है, और जैसे कि वचन में लिखा है कि जो भी हम करें उस काम से उससे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। Okay, now we'll move ahead in Romans 15, verse 1. तो हम रोमियो के 15 अध्याय के पहले वचन की ओर चलेंगे। Now we who are strong ought to bear the weaknesses of those without strength and not just please ourselves. तो हम जो कि
सशक्त हैं, हमें दूसरों की जो कमजोरियां हैं उनको सहन कर लेना चाहिए और हमें सिर्फ अपने आप को ही खुश नहीं करना चाहिए. So, if we think that we are a strong believer in the faith and in devotion to Jesus also, then the Bible says that we have to bear with the weaknesses of the ones who are not so strong in the Lord. तो अगर हम सोचते हैं कि हम बहुत सशक्त हैं और हम परमेश्वर में बहुत आगे हैं, तो बाइबल कहती है कि हमें एक दूसरों की कमजोरियों को सहन कर लेना चाहिए. It says we ought to bear the weaknesses. और यहाँ ऐसा लिखा है कि हमें निर्बलों की निर्बलताओं को सहन करना है. Normally, what happens when we see some weaknesses, we can pounce on them and uh, things like that. और आमतौर पर क्या होता है कि हम किसी की कमजोरियों को देखते हैं तो हम उनके ऊपर हावी हो जाते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए. The apostles who are the strongest in the Lord, the apostles and mature people, they are the ones who support the church. तो जो प्रेरित सबसे ज्यादा परमेश्वर में सशक्त होते हैं, वे लोग जो कलीसिया होती है उसको उठाते हैं, उसका सुधार करते हैं. They are not sitting on the church, but they are supporting the church. तो वो कलीसियाओं के ऊपर नहीं बैठे हैं, परंतु वो तो कलीसियाओं को बल देते हैं. And in Revelations also, on the foundation stones, the names of the apostles were written. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जब हम देखते हैं, वहां पर भी जो नींव के पत्थर है, वहां पर प्रेरितों के नाम लिखे गए हैं. So the more we become strong, dear brothers and sisters, we will go down and support rather than we'll press people down. तो भाइयों और बहनों, जितना भी हम सशक्त बनते जाएंगे, उतना ही हम लोगों को और मजबूत करेंगे, उनको हम नीचे नहीं गिराएंगे. We will lift people up and not press people down. हम लोगों को ऊंचा उठाएंगे, परंतु हम उनको दबाव नहीं डालेंगे उन पर. So that is one thing which I have to bear in mind, all of us have to bear in mind, that if we feel that when we see some weaknesses, then we have to bear with them and not just please ourselves. तो यह बात हम सभी लोगों को अपने अपने हृदय में रखनी है और हमेशा प्रयत्न करना है कि जब भी हम किसी की कमियों को देखें तो हम उनको सहन कर लें और उनका न्याय ना करें. Let each one of us, verse 2, please his neighbor for his good to his edification. That means to his building up. और दूसरा वचन कहता है कि हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निमित्त प्रसन्न करे. Yeah, the word of God says that when we think of one another, we have to think of pleasing each one and building them up rather than discouraging them or things like that. तो बाइबल ऐसा कहती है कि जब हम अपने दूसरे लोगों के विषय में सोचें, भाइयों और बहनों के विषय में सोचें, तब हमें एक दूसरे को प्रसन्न करने के विषय में सोचना चाहिए, उनको नीचे गिराने के लिए नहीं. Verse 3, for even Christ did not please himself, but as it is written, the reproaches of those who reproach thee fell upon me. और तीसरा वचन कहता है, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी. When Jesus was walking on this earth, the people who were ungodly, people who were hating God, or they started reproaching, they started insulting Jesus. The people who had hate in their heart, they put all their hate towards Jesus. तो जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, तो जो लोग निंदा करते थे उनकी जो नफरत थी, वे can you repeat the later part, brother? Yeah, so the people who hated God,
inwardly, they started insulting and they started insulting Jesus. तो जो लोग परमेश्वर की नफरत करते थे, वो लोग यीशु मसीह को नीचा दिखाने लगे, उनकी निंदा करने लगे. They were calling him mad and the prince of Beelzebul and all those names and all they were doing it as Jesus was the Son of God, but the people who hated God, they did all that to Jesus. और यीशु मसीह को लोग अलग अलग नामों से बुलाने लगे, जैसे कि पागल या फिर बिल्जबुल का राजा, ऐसे करके बुलाने लगे, क्योंकि उनके हृदय में परमेश्वर के प्रति निंदा थी. Verse 4, for whatever was written in earlier times was written for our instruction, that through the perseverance and encouragement of the scriptures we might have hope. चौथा वचन, जितनी बातें पहले से लिखी गईं, वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें. So here it says that whatever was written in earlier times, mostly the Old Testament, whatever was written was for our instruction, to give us an example of how those godly people lived. तो यहाँ लिखा है कि जो भी पिछले पुराने करार में लिखा गया है, वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखा गया है, ताकि हम उससे अपने जीवन को जीने के लिए कुछ नियम सीख सकें. So that through the perseverance and encouragement we will have hope. और ताकि हम धीरज और जो प्रोत्साहन है उसके द्वारा हम आशा रख सकें. So these are very much important words, that is through perseverance. Perseverance is somewhat like patience or waiting. I mean, not in a hurry, or nowadays we have the instant, everything is instant, quick. But perseverance is that we wait, and when God promises, we wait till we get it. That is called perseverance. तो यह बहुत ही कुछ अच्छे अनोखे शब्द हैं, जैसे कि धीरज धरना. तो धीरज धरना आज के जैसे जमाने में हम देखते हैं कि सभी लोगों को हर बात की जल्दी मची होती है, परंतु धीरज धरने का मतलब है कि हम इंतजार करना सीखें, हम रुकना सीख जाएं. Today there is a preaching that by faith you can get everything. और आज के जमाने में ऐसा प्रचार किया जाता है कि विश्वास के द्वारा हम हर एक बात को पा सकते हैं. That is only partly true. और यह सिर्फ आंशिक तौर पर सत्य है. Hebrews chapter 6 verse 12 says, इब्रानियों के 6वें अध्याय का 12वां वचन कहता है, that you may not be sluggish, but imitators of those who through faith and patience inherit the promises. ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं. So it says in verse 13, for when God made promise to Abraham, verse 14 says, I will surely bless you and I will surely multiply you, and thus having patiently waited, he obtained the promise. और उसका 13वां वचन से 15वां वचन कहता है कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी, तो देते वक्त शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा कि मैं सच में तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाया जाऊंगा. और इसी रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात को प्राप्त किया. Brothers and sisters, perseverance is a very important quality in the life of a Christian. तो भाइयों और बहनों, जो धीरज धरना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है एक मसीही के जीवन में. We are by nature we want everything instantly, and then we don't have patience, and then we say that God does not work. It's not that way. There is perseverance. God wants to build us in some perseverance for every important thing. Like even an athlete, even for every important work, perseverance is there. तो भाइयों और बहनों, ये बहुत ही जरूरी गुण है
क्योंकि हमें हमेशा जल्दी होती है कि हम हमेशा जो भी वायदे हैं उनको जल्दी से पालें, कोई भी आशीष हमें जल्दी मिल जाए। परंतु जो धीरज धरना है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम एक जो भाग में Important things in life are with perseverance. क्योंकि जीवन की जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं वे हमें धीरज धरने से ही मिलती हैं। Verse 5. Now may the God of perseverance, or it says here, now may the God who gives perseverance and encouragement grant you to be of the same mind with one another according to Christ Jesus. और 5वां वचन कहता है, और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। So it's a wonderful thing that our God, the living God, is the one who gives us perseverance and encouragement. तो यह एक महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारा परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, वह खुद हमें धीरज और शांति देता है, encouragement, हमें प्रोत्साहन देता है। So we need both perseverance and encouragement in our Christian life. और इन दोनों ही बातों की हमें आवश्यकता है, धीरज की और प्रोत्साहन की। And then it says here that so that we'll be of the same mind with one another according to Christ Jesus. और यहाँ ऐसा लिखा है ताकि हम मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहें। So in the body of Christ, the Bible says that now here in Romans, the book of in the place of Rome, there were Jews and Gentiles. So the Apostle Paul is writing, first of all, accepting one another, giving freedom to one another. Now he's saying, now you be of the same mind towards one another. तो जो रोमियो की जगह, रोमियो नाम की जगह थी, वहां पर दोनों प्रकार के मसीह थे, एक तो जो यहूदी हैं और दूसरे जो गैर यहूदी हैं। तो पहले तो प्रेरित पौलुस बोलते हैं कि तुम लोग एक दूसरे को आजादी दो और एक दूसरे को ग्रहण करो, और दूसरी ओर वह यह भी बोल रहे हैं कि तुम एक दूसरे के साथ एक मन होकर रहो। Yeah. So being of the same mind is a very good quality that we need to have. और आपस में एक मन होकर रहना एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है जो हमारे अंदर होना चाहिए। Yeah. Then verse 6, with one accord you may with one voice glorify God and the Father of our Lord Jesus Christ. और 6वां वचन कहता है, ताकि तुम एक मन और एक मुंह होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की बड़ाई करो। Yeah. So again it says with one accord, means again with one accord, one unity, with we praise and worship the Lord together with the same mind, with that unity, we even worship God together in the body of Christ. और यहाँ पर फिर से यह दोहराया गया है कि हम एक मन होकर और एकता के साथ अपने प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करें, के पिता परमेश्वर की बड़ाई करें। Okay. Verse 7 says, verse 7 is one wonderful verse which says, therefore accept one another just as Christ also accepted us to the glory of God. और 7वां वचन कहता है, और यह बहुत महत्वपूर्ण वचन है, यह कहता है, इसीलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। How did Jesus accept us after we cleaned ourselves, after we stopped sinning, after we were good? Then he said, I'll accept you, or he accepted us while we were yet sinners. तो यीशु मसीह ने हमें किस रीति से, किस स्थान पर ग्रहण किया? जब हम लोगों ने अपने पाप करना छोड़ दिए और अपने पापों के लिए हमने शुद्धि पाई, या हमने उनसे मुंह फिराया, तब उन्होंने हमें ग्रहण किया, या फिर जब हम पापी ही थे तब उन्होंने हमें ग्रहण किया? So when we see our brothers and sisters, how do we accept them? We say that, okay, he or she has to become like this, then I will accept him. Then that is not the way that Christ has accepted us. So that is not the way at all.
तो हम भी अपने भाइयों और बहनों को किस प्रकार ग्रहण करते हैं? क्या हम अपने मन में यह सोचते हैं कि उनको इस प्रकार होना चाहिए, उसके बाद मैं उनको ग्रहण करूंगा, या वे जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में हम उनको ग्रहण करते हैं? As per the word of God, as per this verse 7, it says we must accept them as they are. तो परमेश्वर के वचन के अनुसार, इस वचन के अनुसार ऐसा बाइबल कहती है कि हमें उनको जैसे वे हैं वैसे ही ग्रहण करना चाहिए। We should accept our wife and our children and our brothers and sisters as they are. तो हमें अपनी पत्नी को, अपने भाइयों और बहनों को, अपने बच्चों को उसी प्रकार ग्रहण करना चाहिए जिस प्रकार वे हैं, जिस स्थिति में वे हैं। Or husband also. हमें अपने पतियों को भी उसी प्रकार ग्रहण करना चाहिए। So that's the challenge for all of us, and that is what will be good for us. और यह हमारे लिए एक चुनौती है, और यह हमारे लिए अच्छा भी है। Not waiting for them to change, but to accept them as they are. तो हमें इस बात का इंतजार नहीं करना है कि वे लोग बदल जाएं, परंतु उनको जिस स्थिति में वे हैं उसी स्थिति में ग्रहण करना है। So while we are in the home, can we say to the one next to us, I accept you as you are? तो जब हम लोग अपने अपने घरों में हैं, तो जो भी व्यक्ति हमारे बगल में है, क्या हम उसको बोल सकते हैं कि मैंने तुम्हें जैसे तुम हो वैसे ही ग्रहण किया है? Can we take 5 seconds to do that right now? तो क्या हम 5 सेकंड का समय लेकर अभी ये बात अपने पड़ोसी से बोल सकते हैं? Can we do that now itself? क्या हम अभी ये बात बोल सकते हैं? Yeah, please do that. तो आप लोग ऐसा करें। I accept you as you are. और यह बोले कि मैंने तुम्हें ग्रहण किया है जैसे भी तुम हो। Yeah. So verse 8. For I say that Christ has become a servant to the circumcision on behalf of the truth of God, to confirm the promises given to the fathers. और वचन 8 कहता है, मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों की को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। And verse 9, and for the Gentiles to glorify God for his mercy, as it is written. Verse 9, and for the Gentiles also. और अन्य जातियों की भी दया के कारण परमेश्वर की बड़ाई करें, जैसा लिखा है कि इसीलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा। So there are two groups. One is the Jews, which are God's chosen people, and he says Jesus Christ has come. Jesus has come to confirm the promises which God gave to the fathers. I mean, through the prophets, God gave so many promises, and that the Messiah would come, and Jesus came for that, for the Jews. तो यहाँ पर दो प्रकार के झुंडों की बात की गई है। एक तो जो यहूदी हैं, तो उनके साथ जो भी वादे उनके बाप दादाओं के साथ किए गए थे पुराने नियम में, उन सब वायदों को पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। So many in the Old Testament, so many promises were given concerning Christ, and Christ came so that to confirm that that he is the Messiah, and that God's blessing will come upon the Jews. तो पुराने नियम में ऐसे बहुत सारे वायदे किए गए थे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कि एक मसीहा आएगा, और ऐसे उन वायदों को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आए। And verse 9 says, and also he came for the Gentiles to glorify God for his mercy. और 9वां वचन कहता है कि वे अन्य जातियों को के ऊपर दया के कारण परमेश्वर की बढ़ाई करें, इसीलिए भी वो आए। So when Jesus came, the Gentiles, the rest of the people of the world, got mercy. तो जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, तो जो अन्य जाति लोग थे, जो बाकी के लोग, यहूदियों के अलावा जो लोग थे, उन सभी लोगों को दया मिली।
So it is for both groups, Jews and the Gentiles, that Jesus came. तो यहाँ पर दोनों झुंड, एक तरफ यहूदी और एक तरफ अन्य जाति, इन दोनों ही समूहों के लिए यीशु मसीह आए. And this was prophesied in the Old Testament in many places. So a few 4 verses are given here. और इस बात की जो भविष्यवाणी है, यह पुराने नियम में बहुत बार हुई, और उसी के लिए हमें यह 4 वचन यहाँ दिए गए हैं. So it says in the first one, therefore I will give praise to thee among the Gentiles, and I will sing to thy name. Verse 11, brother. Verse 9. तो अच्छा, तो वचन 9 कहता है कि इसीलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा. So in English, in some translation is written, therefore I will give praise to thee among the nations. But in NASB is written Gentiles. So it is the nations are the Gentiles. तो किसी अनुवाद में जो इंग्लिश बाइबल है उसमें लिखा है कि इसीलिए मैं अलग अलग राष्ट्रों में, राज्यों में, देशों में तेरा धन्यवाद करूंगा. और कहीं पर जो NIV वर्जन है वहां पर लिखा है कि मैं जेंटाइल्स यानी कि अन्य जातियों में तेरा धन्यवाद करूंगा. तो इसका मतलब यह है जो अन्य जातियां हैं वे अलग अलग देशों के विषय में बात कर रहे हैं. Yes. And verse 10 is from Deuteronomy 32:43. We will not refer to Deuteronomy, but it is from Deuteronomy. It says, rejoice, O Gentiles, or rejoice, O nations, it's written, with his people. तो जो 10वां वचन है वह व्यवस्था विवरण के पुस्तक में से लिया गया है, और वहां पर लिखा है कि मैं जाति, the same verse is written there, brother. Same verses there. You just translate this one. तो हाँ, तो ये वहां पर वचन 10वां वहां पर भी लिखा गया है, और वहां लिखा है कि मैं जाति जाति के सब लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद करूं. So with his people means the Jews. Rejoice, O Gentiles, or rejoice, O nations, with his people, the Jews. That is, it's written in Deuteronomy. तो उसकी प्रजा के साथ मतलब यहूदियों के साथ, और यहाँ पर जेंटाइल्स यानी अन्य जातियों के लोगों के विषय में बोला जा रहा है. तो जाति जाति के लोग यहूदियों के साथ आनंद करें. So this was written right in Deuteronomy. और यह बात ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखी गई है. And verse 11 is from Psalms and verse 12 is from Isaiah. So this was all written about the Gentiles getting the blessing along with the Jews. तो जो 11वां वचन है वह भजन संहिता में से है, और 12वां वचन है वो यशायाह की पुस्तक में से है. तो इसका मतलब यह है कि जो अन्य जाति के लोग हैं उनको भी यहूदी लोगों के साथ सारी वायदे मिल रहे हैं. So verse 13, now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. और 13वां वचन कहता है, तो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा के की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए. So it says he is the God of hope. तो यहाँ कहा गया है कि परमेश्वर एक आशा का दाता है. Now when we think of the English word hope, normally in our conversation we say, I hope I will get the job, or I hope I will I will pass. But that is not the hope in the Christian life. तो यह जो आशा शब्द है इसका जब अर्थ हम इंग्लिश भाषा के में देखते हैं तो इसका मतलब है कि लोग सोचते हैं कि मुझे आशा है कि मुझे यह जॉब मिल जाएगा, या फिर मुझे आशा है कि मैं मेरे एग्जाम को पास कर लूंगा. परंतु यह मसीही आशा नहीं है. मसीही आशा हमें कुछ और ही बताती है. In the Bible, hope is the confident expectation of what God has promised, and the strength of that is his faithfulness. और बाइबल में जो आशा शब्द है उसका अर्थ है कि उन वायदों के ऊपर पूरा
कॉन्फिडेंस होना कि यह वायदे पूरा होते हुए हम देखेंगे. So, brothers and sisters, we are living with a hope. It says, "He who has that hope fixed on him purifies himself just as he is." The hope of seeing Jesus is not, "I wish I will see Jesus." It's a real hope that we are expecting it. तो भाइयों और बहनों, जो मसीही आशा है, यह एक वास्तविक आशा है, और उसमें ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी कामना रखता हूं कि मैं यीशु मसीह को देखूंगा, परंतु यहाँ पूरे आत्मविश्वास के साथ हमारी आशा है कि हम यीशु मसीह को देखेंगे. So the God of hope will fill us with joy and peace in believing, and that we'll be abounding in hope. Our hope will not be a small hope, but full of hope all the time. That is the Christian life. तो हम हमेशा आशा से परिपूर्ण रहेंगे, और वह आशा हमें परमेश्वर के फायदों पर विश्वास रखने के लिए और परमेश्वर में हमेशा आनंद और शांति से परिपूर्ण रहने के लिए मदद करेगी. And the last verse, verse 14 for today. And concerning you, my brethren, I myself also am convinced that you yourselves are full of goodness, filled with all knowledge, and also able to admonish one another. और 14वां वचन, जो कि आज के अध्ययन का आखिरी वचन है, वह कहता है, हे मेरे भाइयों, मैं आप भी तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो. So it's a wonderful verse for us to practice in our life. और यह बहुत ही अद्भुत वचन है जो हम अपने जीवन में अनुसरण में ला सकते हैं. It says, I'm convinced that you yourselves are full of goodness and filled with knowledge and able to admonish or to correct one another. तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि हम भी पूरी तरह से भलाई से भरे हुए हैं और ईश्वरीय ज्ञान से भी भरपूर हैं, ताकि हम एक दूसरे को सही कर सकते हैं या चिता सकते हैं. So when we want to correct one another, the word of God says we need to be full of goodness. Okay, it's easy to correct. When we correct it without any goodness in our heart and without full knowledge, okay, we will make a mess. तो यहाँ पर बाइबल बताती है कि जब भी हम एक दूसरे को सही करना चाहते हैं या चिताना चाहते हैं, तो हमारे अंदर हम भलाई से भरे हुए होने चाहिए और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर होने चाहिए. अगर यह दोनों बातें हमारे अंदर नहीं है, तो हम लोग उस समस्या को और बढ़ा सकते हैं. So instead of helping, we will further complicate the situation. So we must be careful always. If there is no goodness within our heart, we should not correct. तो दूसरे की भलाई करने के बजाय हम जो समस्या है उसको और भी गंभीर बना सकते हैं. तो हमें इस बात में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम दूसरे को सही करना चाहते हैं, चिताना चाहते हैं, तो हमारे अंदर भलाई होनी चाहिए. And it says filled with all knowledge, perhaps to know the situation more properly. That is also very essential. और हमारे अंदर ईश्वरीय ज्ञान होना चाहिए, और इसका मतलब यह है कि उस स्थिति के बारे में हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए. And also in that the knowledge could be the wisdom and knowledge of how to correct or admonish. और इस बात के विषय में भी हमें ज्ञान और बुद्धि होनी चाहिए कि हमें एक दूसरे को चिताने के लिए कैसे आगे बढ़ना चाहिए. So in this passage from 1 to 14, there are 3 verses which are very strong for me. The first verse, now we who are strong ought to bear the weaknesses of those who are without strength and not please ourselves. And verse 7, wherefore accept one another just as Christ has accepted us to the glory of God. And verse 14, and concerning you, my brethren, I myself am convinced that you yourselves are full of goodness, filled with all knowledge, and able to admonish one another. These 3 verses are a great practical help in our lives.
तो ये जो हमने अभी वचन में से पढ़ा रोमियो के 15 अध्याय में के 1 से 14वें वचन में, इसमें जो 3 वचन हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगे। उसमें से पहला वचन है जो 15 का पहला वचन, वह कहता है निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। उसके बाद 7वां वचन, इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। और उसके बाद 14वां वचन, हे मेरे भाइयों, मैं आप भी तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। Yeah, amen. सो वर्स 3 में लिखा है कि क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है कि तेरी निंदाओं की निंदा मुझ पर आ पड़ी है। तो नया करार में मसीह हमें बुलाने का खास कारण यहाँ पर लिखा है कि हम मसीह लोग हम अपना जीवन में ये सोचना चाहिए कि मैं हमेशा मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा करने वाले जीवन होना चाहिए, ना कि मैं अपने आप को ऊंचा उठाने वाली लाइफ नहीं चाहिए मुझे। और मेरे जीवन में हर दिन मेरा मकसद ये है कि परमेश्वर की महिमा मेरा जीवन से होना चाहिए। कई बार हम सब कुछ हमें मिल जाता है तो कई बार हम एक कंफर्ट जोन में रह जाता है कि मेरे पास सब कुछ है और अपने आप को खुश रहने के लिए सारा चीज इंतजाम कर लेते हैं, वहां पर हम पाप में गिरने का मौका जरूर रहेगा। तो यह वचन बहुत हमें एक उदाहरण के रूप में लिखा है कि मसीह ने अपने आप को कभी प्रसन्न नहीं किया। जॉन चैप्टर में अगर खोलेंगे वहां पर लिखा है कि मैं अपने आप से कोई भी काम नहीं करूंगा, जो पिता ने मुझे करने के लिए कहा वो करूंगा। वो हम देखेंगे जॉन 8:29 में लिखा है, हम देखेंगे एक बार। आपके पास बाइबल है, प्लीज उसको देखे। जॉन 8 गॉस्पेल 8:29, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। मसीह जब धरती पे आया था उसने कोई भी काम अपना मर्जी से नहीं किया, वो काम किया जो पिता को जो प्रसन्न करने वाले काम। तो ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि प्रभु में सुबह से लेकर कई बार कई चीजों पर मैं काम करने के लिए शुरुआत करता हूँ, लेकिन क्या हर एक काम में या मेरी महिमा के लिए कर रहा हूँ या आपकी महिमा के लिए कर रहा हूँ? हम हर दिन हर समय ये प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप को। पवित्र आत्मा कुछ जगह पर आपको रोशनी देगा कि ये काम तुम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। तब हम पहले वचन में तीसरे वचन में जैसे लिखा है कि मसीह ने कभी अपने आप को प्रसन्न करने के लिए नहीं किया। और एक वचन में बहुत प्रोत्साहन मिला, ब्रदर मैथ्यू शेयर कर रहा था, रोमन्स चैप्टर 15 और वर्स 4, जितने बातें पहले लिखी गई है वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है। ये सब ओल्ड टेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा था, ओल्ड टेस्टमेंट के लिए। तो हम सीखना चाहिए कि जुने करार में ऐसा लोग हैं जो अपने आप को कभी प्रसन्न करने का जीवन नहीं जिया और वो हमेशा दूसरों को उठाने वाली जीवन जिया था। ऐसा लोग है तो हमको कैसा पता चलेगा कि हाँ ऐसा लोग आज के जमाने में कैसे मिलेगा? इसलिए बाइबल हमें दिखाता है कि हर एक हम ओल्ड टेस्टमेंट का कोई भी वचन को भूलना नहीं चाहिए। हम लोग जितना हो सके कि आप पढ़ो और परमेश्वर आपको बहुत मदद करेगा कि आज का जीवन में कैसा हमको मसीह जीवन जीना है और पवित्र आत्मा के द्वारा। तो अगर हम जुना करार के उपदेशों को अगर एक भी पढ़ना हम भूल जाएंगे तो उनमें से जो सत्य है, जो हमारे जीवन के लिए जो आने वाले दिनों में हम जीने वाले हैं, उसमें से कुछ ना कुछ मिस हो जाएंगे। तो बहुत जरूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम जुना करार के हर एक वचन हम पढ़ना चाहिए। ये हमारे लिए उपदेश है। हर एक वचन में मुझे बहुत रोशनी मिला कि वचन
2 Timothy 3:16. Second Timothy 3:16 यहाँ पर लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसलिए वही बता रहा हूं कि उसमें से हम सोचेंगे कि ये जुना करार पढ़ने से मेरे जीवन में क्या लाभ होगा। वहां पर लिखा है कि उनमें कई सारे चीजें हमारे जीवन सुधारने के लिए या शिक्षा के लिए और उपदेश के लिए और हमारी प्रेरणा के लिए, हमें प्रोत्साहन मिलने के लिए लिखा गया है। और वो सारा चीज पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। तो उसमें से कोई भी हम भूलना नहीं चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके हम। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि और एक चीज ब्रदर मैथ्यू ने भी कहा कि अगर हम कलीसिया में हैं, कई साल से अब विश्वास में मजबूत हो गया, आपको आगे ऐसा विश्वासी मिला जो कमजोर विश्वासी है, तो हमारा शरीर के अंदर एक ऐसा स्वभाव है कि जल्दी से जल्दी इसको उसके अंदर कुछ कमीपन दिखाया है। तो वचन हमें सावधान करती है, उनके साथ एक सात्वाना एक ऐसा दीन मन रखकर हम उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। भले उसको बढ़ने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उसको मजबूत विश्वासी आप हो तो उसको एक्सेप्ट ऐसा करना चाहिए। जैसे कि जब पतरस यीशु को 3 बार इनकार किया, यीशु को मालूम था कि वो बोलने वाला है 3 बार, लेकिन जब 3 बार इनकार करने के बाद पतरस जब बाहर जाके रोया, जानते हैं वो रोने से पहले यीशु ने उसके तरफ एक नजर देखा। वो जो नजर है, यीशु ने उसके तरफ जो नजर देखा, उसका दिल टूट चुकी है। रो गया उधर, बहुत रोया, वो बिलक बिलक कर रोया है वो। तो यानी हमको कई बार एडम के हमारा स्वभाव है कि कोई पापी मिलता है, उनको हमें डांटने का मन रहते हमारे अंदर। डांटेगा तो जल्दी सुधर जाएगा, नहीं तो उसको जल्दी से जल्दी कुछ ताड़ना देगा तो जल्दी सुधर जाएगा। लेकिन बाइबल ये कहती है उसके साथ एक धीरज रखो और उसको एक्सेप्ट करो। ये मत सोचो कि आप कभी नहीं गिरेंगे। इसमें बाइबल में एक वचन में लिखा है कि जो कड़े हैं वो सावधान से खड़े रहो। हम भी आत्मिक जीवन में कभी गिर भी सकते हैं, लेकिन इसलिए जो कड़े हैं सावधानी से रहो, कभी ना कभी हम भी गिरने का चांस रहेगा। तो इसलिए हम हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी भाई या बहन कलीसिया में है, उनके साथ एक धीरज के साथ रहना चाहिए। उनको एक्सेप्ट करने का दिल हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए। प्रेज गॉड। Romans 15:2-3. Let each of us please his neighbor for his good, leading to edification, for Christ did not please himself. तो मैं आपसे कुछ वचन बांटना चाहूंगा जो मुझे जिससे परमेश्वर ने बात की, वह है रोमियो के 15 अध्याय के 2 और 3 वचन। उसमें लिखा है, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निमित्त प्रसन्न करे, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। Somebody said our home can be heaven when, say for example, husband tries to please his wife is trying to please the husband, children are trying to please the parents, and so on. And such a house can again be hell when each are living for themselves. तो किसी ने कहा है कि जो हमारा घर है वह स्वर्ग समान हो सकता है, जहाँ पर अगर पत्नी अपने पति को प्रसन्न करने के लिए जिए, पति पत्नी को प्रसन्न करने के जिए, और बच्चे माता पिता को प्रसन्न करने के लिए जिए, और उसी के विपरीत वह नरक के समान भी हो सकता है अगर हर एक जन अपने खुद के ही को प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन जिए। No, it's written in Philippians also. There's a verse which says we should not be selfish-minded, but we have to consider one another more important than ourselves.
फिलिपियों की पुस्तक में भी एक वचन है, वहां पर लिखा है कि हम लोगों को अपने अपने ही स्वार्थ के विषय में नहीं सोचना चाहिए, परंतु हमें एक दूसरे के भलाई के विषय में सोचना चाहिए। I think many of you might have heard the story of a picture in hell where it's so many different items of most beautiful foods are presented on the table, but none of them can enjoy because each of them have got a spoon with a long handle, and how much ever they try to feed themselves, they are not able to do it. तो आप सभी लोगों ने शायद उस दृश्य के विषय में देखा होगा जहां पर नरक में एक मेज पर बहुत अलग अलग स्वादिष्ट भोजन रखे गए हैं, और परंतु कोई भी उन भोजनों में से किसी भी भोजन का आनंद नहीं ले पा रहा, क्योंकि उनके पास जो चम्मचे हैं, उनकी डंडियां जो हैं वे काफी लंबी हैं और खाना उनके मुंह तक पहुंच ही नहीं पा रहा। The table with food items are exactly same, but there everybody is enjoying the food because each with the same spoon with a long handle. Brother, can you repeat, please? I could not hear actually. But the picture of the table with most delicious foods are same in heaven, but all are enjoying the food because each person is feeding their neighbors with the spoon with a long handle. They are not trying to feed themselves, they are trying to feed the next person. Yes. तो यह जो मेज है, यह बिल्कुल इसी प्रकार की मेज स्वर्ग में भी है, और उसमें भी बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए हैं, और उन व्यंजनों का आनंद वहां सभी ले पा रहे हैं, क्योंकि उन सभी के पास जो चम्मचे हैं, वो जो वहां पर उपस्थित लोग हैं, वे उन चम्मचों से खुद को नहीं खिला रहे, परंतु अपने पड़ोसी को खिला रहे हैं। So that is the type of life God wants us to live, so that we can truly enjoy heaven. और यही एक प्रकार का जीवन है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम जिएं, ताकि हम स्वर्ग का आनंद वास्तविकता में ले पाएं। God made us in such a way that when we live for others, we are truly happy, but when we live for ourselves, we are truly terribly sorrowful. तो परमेश्वर ने हमें इस रीति से रचा है कि जब हम दूसरों के लिए अपना जीवन जीते हैं, तब हम बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं, परंतु यदि हम खुद के लिए ही जीवन जीते हैं, तो हम बहुत ही गंभीर तरीके से हम निराश रहते हैं। That is what we see in the nature also. All the trees are bearing fruit not for themselves but for others. Rivers are flowing, that's for others. Everything is in the nature is doing things not for themselves but for others. और यही बात हम प्रकृति में भी देख सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं, वे जो फल देते हैं, वे अपने लिए नहीं देते, वे दूसरों के लिए देते हैं। उसी प्रकार से जो नदियां हैं, वे खुद के लिए नहीं बहती, परंतु दूसरों के लिए बहती हैं। तो जो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं प्रकृति में हैं, वे खुद के लिए नहीं कुछ करती हैं, परंतु वे दूसरों के लिए करती हैं। Now, this is also a wonderful verse that what we heard, that all the verses in the Old Testament are given to us, scripture verse 4, so that through the patience and comfort we can have hope. और यह यहाँ पर भी एक बहुत ही सुंदर वचन है जो हम देख सकते हैं, जो है चौथा वचन, जहाँ पर लिखा है कि जितनी बातें पहले से लिखी गईं, वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। Say, take for example, Abraham and Sarah, they got a promise when they are 75, but they got the child when they are almost 25 years afterwards. तो अब्राहम के विषय में ही देख लीजिए कि उनको जब वायदा मिला था, तब वे 75 साल के थे, और उस वायदे को पूरा करने के लिए पूरे 25 साल लग गए, और उनको संतान हुई जब वे 100 वर्ष के हो गए। Take for example Joseph. He had a dream that a day is going to come when he's going to be some sort of a ruler, but
he had to go through so much pain. He had to, he was in prison. He was hated by brothers, sold by the brothers. So we can see that, there we can, from those lives, we can take examples of patience and comfort. और यूसुफ के विषय में ही आप देख लीजिए कि जब उसको एक वायदा मिला था कि वह एक राजा होगा, और उस वायदे को पूरा करने के लिए उसको कितना दर्द सहना पड़ा और कितनी ही ताड़नाओं से गुजरना पड़ा। तो तो हमें भी उतनी धीरज धरना पड़ेगा। Think of a man called Jacob, who was a deceiver, but God made him a godly man in the end. A gem of a person in the end. और उदाहरण के तौर पर आप याकूब के विषय में ही देख लीजिए, वह एक धोखा देने वाला था, परंतु अंत के समय में परमेश्वर ने उसके अंदर जो कार्य किया, वह एक हीरा के समान एक व्यक्ति बन गया। We all have got tremendous hope when we yield ourselves and cooperate with the Holy Spirit. और हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी आशा है जब हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के सामने समर्पित करें और पवित्र आत्मा को उसका कार्य करने दें। कि मेरे जीवन में, मेरे घर में जो कुछ हम देखा और जो कुछ किया, जो कुछ सुना हुई, तो हम लोग पहला 5 साल पहला एक कलीसिया में जाते थे, और उधर वो बदर सबका नाम ले लेके सबको बोलते थे ये, और जो पैसे वाला रहता था वो बड़ी मच्छी वगैरह ऐसा सब कुछ बोलते थे, और उन लोगों का सबका नाम लेते थे। और औरतों को भी, कुछ औरतों को भी बहुत लेते थे, और उनको प्रार्थना करने के लिए भी बोलते थे कि आप आगे आओ प्रार्थना करो। तो मुझे कभी नहीं बोला, और मेरी इच्छा भी नहीं थी कि मैं कुछ बोलूं, और ऐसा मुझे प्रभु ने ऐसी इच्छा और ऐसा मन दिया था। और फिर एक दिन हम लोग उसके प्रार्थना के बाद में घर निकले, तो इसका पापा बोल रहे थे कि ये लोग तेरा नाम कभी नहीं लेते, ऐसा क्यों? और सबका नाम लेते। मैं बोला, विपुल का पापा, नाम ले या ना ले इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें प्रार्थना के लिए बोले ना बोले इससे क्या फर्क पड़ता है? हम प्रार्थना करते तो हमारी प्रार्थना प्रभु जानता है। तो हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें हमारा नाम ले और हम मैं कुछ हूँ करके हमारे अंदर घमंड आए। तो ये प्रकाश परमेश्वर ने मुझे पहले से ही दिया, तो मैं कभी नाराज नहीं होती थी। मैं बोला शायद मेरा नाम अच्छा नहीं इसलिए वो नाम नहीं ले सकते मैं ऐसा सोचती थी। मैं बोला कोई बात नहीं। लेकिन फिर इसका पापा बहुत ही मेरा कमजोरी गया नहीं। कोई कितने लोग प्रार्थना, मैं बोला प्रार्थना कराऊं तो मैं भी ऐसा, लोग गिरते करते और छुटकारा होता है, छुटकारा सभा ऐसा बोलते हैं तो मेरा भी हो जाएगा। लेकिन कितने लोगों के पास में जाके बहुत ही छुटकारा के लिए प्रेयर कराया, लेकिन नहीं हुआ। मैं बोला जाने दो, नहीं होएगा तो नहीं सही, लेकिन मैं यीशु के पास ही रहूंगी और वो मुझे चलाएगा। तो 7-8 साल तक मुझे, अभी जो मेरी परिस्थिति है वो मैं यीशु में आई तभी भी मेरी यही परिस्थिति थी, और यीशु में आने के बाद में 1.5 साल बाद में मैं खड़ी होने लगी। और 7-8 साल मैं बहुत अच्छा से चली। 2-3 साल तक तो मैं मेरा परिवार का किसी सदस्य को साथ में लेके चलती थी और खंदा पकड़ के चलती थी। और 5 साल में अकेला चलती थी और हर जगह मुझे प्रभु भेजता था, मैं वहां जाती थी। तो बाद में इसका पापा बोला अरे सब लोग हो रहा है। कोई बोलता है अरे इसका अंदर विश्वास नहीं है इसलिए छुटकारा नहीं हो रहा है। कोई बोलता है अरे दूसरों को माफ नहीं किया इसलिए उसको चंगाई नहीं हो रही है। और फिर मैं दुखी हो जाती हूँ। मतलब अभी तक मैंने किसी को माफ नहीं किया क्या, ऐसा कुछ है क्या? तो 1-2 बात मुझे प्रभु ने बताई थी। मैंने प्रभु को बोला तू मुझे शक्ति दे, मैं उसको माफ करूं। तो उसके बाद में मुझे प्रभु ने कभी नहीं बोला। और इसका पापा बोल रहा है सब लोग हो रहा है और तू नहीं हो रही है। मैं बोला जाने दो, नहीं हो रहा है तो नहीं सही, हम प्रभु को ही पकड़ के रखेंगे। तो ये कभी कभी इतना नाराज हो जाता था इसका पापा, तू जा, मैं नहीं आऊंगा, तू जा। तो विश्वास में ऐसा कमजोर होने लगा और बोलता है कि मैं तू ही जा, मुझे उठाना मत। कल संडे या शुक्रवार मेरा परिवार बहुत सावधान रहता था कि कुछ भी थोड़ा भी हलचल हुई, गड़बड़ हुई तो वो बोलेगा मुझे नहीं आने का है। ऐसा हम लोग परेशान रहते थे। मैं पहले ही फोन करके पूछती थी पापा का मूड कैसा है, और मुझे देखते ही वो सोसाइटी में आते ही उसका मूड को क्या होता था और बदली हो जाता था।
और मैं मन में ही प्रार्थना करने लगती थी, मैं प्रभु बोले तो अच्छी बात बोले, नहीं तो मुंह खोलना ही मत, बंद ही रखना। और हम चर्च जाते थे तो भी मैं सुबह में उठ के ये गाना गाती थी, यीशु बुलाता तुम्हें, काम करती थी और गाना गाती थी। और मैं बोलता चलो, तो मुझे दुरकारते थे, तो बोलते कि तू जा, मुझे नहीं आने का, तू जा, मुझे नहीं आना था आने का। और फिर कभी कभी मैं अकेली ही जाती थी, फिर पीछे से गाड़ी लेके मेरे बाजू से चले जाते थे, और फिर मैं अकेली जाती थी और फिर रोते रोते जाती थी। फिर और चर्च से निकलते ही वो लोग खाना खाते थे और मुझे खाना भी नहीं खाने देते, और नहीं वो खुद खाते थे और ऐसा ही गुस्सा करते थे, ऐसा लगता है मुझे खा जाएंगे, ऐसा उसके अंदर ऐसा मतलब शक्ति एक शैतान की थी। और बाद में हम लोग रास्ते में आते थे तो वो इतना बोलते थे कि बच्चे लोग जाके दरवाजा मतलब ये दुकान क्यों ना खोले, और मैं क्यों खोलूं, मैं आराम करूं, मैं बाद में जाऊं, और ऐसा बोलने लगता है। मैं चुपचाप मुंह बंद करके बैठती थी और कुछ नहीं बोलती थी, और उसके साथ में टिफिन बना के सुबह लेके जाती थी और वहीं पर दिन भर रहती थी। मुझे बोलता था सोने का नहीं, बस बैठी रहो, सोने के लिए टाइम नहीं मेरे पास नहीं है, मेरे को काम है, तो मैं बैठी ही रहती थी। और ऐसा प्रभु ने फिर भी उसको विश्वास में रखा। अभी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अभी वो बहुत ही विश्वास में है। चाहे मैं अभी 2 साल से पलंग पर हूँ, 1-2 बार हुआ था कि कल कोई आराधना में नहीं बैठेगा, प्रार्थना में नहीं बैठेगा, और यीशु तुझे करता नहीं है। मैं बोला देखो ना, हमारे द्वारा दूसरे लोग आशीष पा रहे, वो लोग हो रहे हैं ना, तो बोलते है कि वो लोग हो रहे तो तू नहीं हो रहे है ना। मैं बोला जब उसका समय आएगा तभी हो जाएगा। और सुबह में भले वो एक गाने में से बोली 2 लाइनें गाए, कुछ छोड़ दे, फिर भी हमारे साथ गाते तो अच्छा से गाते, और नहीं तो पटरी से उतर के कहीं और घुस जाते। मैं बोला परमेश्वर ये टूटी फूटी शब्दों के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, और परमेश्वर उसको जो जिम्मेदारी दिया वो पूरी कर रहा है। तो अभी वो बहुत ही विश्वास में परमेश्वर ने उसकी जड़ें मजबूत की, और पहले से वो गुस्से से बहुत ही बाहर आया। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम किसी से कोई उम्मीद नहीं रखने का, चाहे हमें बोलने का मौका मिले या ना मिले, चाहे गवाही देने का मौका मिले। मैं किसी को सुनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं अपना जीवन का बता रही हूँ कि हमें कभी मिले ना मिले, कि हमें बोलना ही सब कुछ नहीं है कि हम भी कुछ है, हम भी कुछ बोले। हम हमारा बोलना, हम पर्सनल अकेले में परमेश्वर को बोल सकते हैं। सबको मुंह नहीं बनाया है परमेश्वर ने, कुछ कुछ लोगों को ही बुलाया है, बनाया है। इसीलिए हमें किसी से कोई उम्मीद भी नहीं रखना चाहिए कि मैं कुछ हूँ और मैं कुछ बोलूं और मेरी कोई तारीफ करे और अच्छा लगे सबको। भी बोल का पापा कभी कभी जाते तो बोलता है आज मुझे प्रार्थना करने के लिए बोला था, आज मुझे वचन पढ़ने के लिए बोला था। जब मैं उनके साथ जाती थी कभी 2 साल पहले, तो बोलता है मैंने आज प्रार्थना किया था, कैसा लगा? मतलब मुझे मत पूछो, परमेश्वर को कैसा लगा उसको पूछो कि वो सुना है कि नहीं। तो ऐसा उसके मन में खुशी होती है। और कहीं पर भी वो बात करते हैं किसी गांव में या किसी के साथ में, तो उसकी तारीफ लोग करते, अरे वाह आप कितना अच्छा बोलते हैं, कोई ऐसा बोलते नहीं। और आप जो बोलते हैं ऐसा कोई नहीं बोलते। मैं बोला ये सब परमेश्वर का जो प्रकाश है जो हमें मिला है, जो हमें सारी महिमा प्रभु को ही देना चाहिए। धन्यवाद भाई, जो मेरे मन में था और मैं बोला। थैंक यू।